ویلکم بیک۔ خبر شامل کریں کہ سندھ کے سرکاری افسران اور ملازمین کے مطالبات محکمہ فائنانس میں 20 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا گیا۔ سندھ کے بلدیاتی ملازمین اجلاس کے بعد حکمت عملی طے کریں گے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سندھ کے تمام افسران و ملازمین اور ان کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے جہاں یقینی طور پر تمام رہنماؤں نے سیگا ہو یا آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن ہو، ذوالفقار شاہ ہو، ان سب نے مل جل کر جو جد و جہد کی تھی تو اس کا تو نتیجہ آنا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان پیس پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کا نوٹس لیا تھا اور کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی پینشن ہی روک جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور انہوں نے سختی سے ہدایت کی تھی اور کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو کہا ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ 6 اکتوبر کو بلاول ہاؤس پر دھرنے کی کال تھی اور اس سے پہلے 23 اکتوبر سے تقریباً تمام سندھ میں سرکاری دفاتر بند تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو عوام کا حق، غریبوں کا حق، محنت کرنے والوں کا حق کا دفاع کر ان سے انگیج کیا جائے، ان کا جو جائز اعتراضات ہے ان کو دور کیا جائے، اور جو اگر آپ کے کوئی انٹرونشنز ہے یا ریفارمز ہے وہ بھی آپ سندھ کے عوام کے سامنے یہ جو احتجاج کریں۔ تاہم چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی صدارت میں پھر ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں پھر یقینی طور پر غور و خوض کیا گیا، جس پر چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے اس موبائل فون پر بات کی وزیر اعلیٰ سندھ سے اور بتایا کہ میری بات ہو گئی ہے اور کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ان کا ایجنڈا رکھا جائے گا۔ تاہم وہ ایجنڈا آگے پیچھے ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، مذاکرات کا دور چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اور چلنا بھی چاہیے، لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ جو مذاکرات کا دور ہے اس کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ایک اور لیٹر نکل گیا ہے کہ 20 تاریخ کو پھر میٹنگ ہوگی، جی ہاں، اور اس میں تمام جو ہمارے افسران ہیں لوکل فائنانس ڈپارٹمنٹ کے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ 20 تاریخ کو میٹنگ ہوگی۔ اس حوالے سے جو مذاکرات کا دور کا اگلا مرحلہ ہے اس پہ یقینی طور پر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ابھی اس میں سب سے زیادہ فوکس کرنے والی چیز یہ ہے کہ اس میں کیا بلدیاتی ملازمین ہیں یا بلدیاتی افسران کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے کہ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے صدر چیئرمین جو ہے وہ صوبہ سندھ کے صدر ذوالفقار شاہ اور تمام یونین ایک پلیٹ فارم پر مضبوطی سے دامن پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اب یقینی طور پر 20 تاریخ کو یعنی 20 اکتوبر کو جو 12:30 بجے میٹنگ بلائی گئی ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بلدیاتی ملازمین کو نظر انداز کیا گیا، کیونکہ کوئی بڑے چیز نہیں ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک گریڈ سے لے کے 14 15 گریڈ 12 گریڈ اور پھر افسران کے جائز حقوق جو ہیں اس کا بھی تحفظ کیا گیا، اور یہ صرف کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، سندھ کے تمام محکمے جو ہیں ان کے لیے یہ کہیں یونین کر رہی ہے، اور دیکھتے ہیں اب اس کے 20 تاریخ کو اجلاس میں کیا طے پاتا ہے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ کوٹے پر عمل درآمد کے لیے ریجنل ڈائریکٹر کے احکامات۔ کراچی میں ریجنل ڈائریکٹر کی خاموشی کیوں؟ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سندھ کی سطح پر لیٹر تو نکلتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی لیٹر نکلتا ہے، اسی طرح میونسپل کمیٹی کوٹری سے ایک لیٹر تعلقہ کوٹری سے نکلا ہے، ڈسٹرکٹ جام شوروں سے، یہ ہے تقریباً سمجھ لیں آپ 16 اکتوبر 2025 کا، اور اس میں ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ حیدرآباد ریجن کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ ایاز حسین ہے، یہ منیر ہے، پاور ہے، کون ہے، چڑیا ایسی بٹھائی ہے کہ رہنام اللہ کا چیف
म्यूनसिपल ऑफिसर हैं और ये म्यूनसिपल कमेटी कोठरी के, चलो इससे तो साबित हो जाएगा ये है, तो इन्होंने निकाला है और रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को लिखा है कि जो अमल दरामद कराया जाए, जो 10 अक्टूबर 2024 को पास बाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, यानी कि सिंध हाई कोर्ट ने जो पास किया था, उसके हवाले से सक्कर बेंच का जो फैसला था, उन्होंने कहा है कि हम आपको बता रहे हैं कि वो जो अपॉइंटमेंट थी ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक के लोग थे और 5% रिजर्व कोटा था डिफरेंट, यानी जो दूसरे पर्सन होते हैं ना, हमारे काउंसिल के लोग जो डिसेबल होते हैं या दीगर लोग होते हैं, उनके हवाले से लिखा है और कहा है कि डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी DRC ड्यूरिंग द 12 years अकॉर्डिंग द अबव इंफॉर्मेशन में भी ट्रीट एज नील। बहरहाल इन्होंने बता दिया है कि साहब DRC भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो 5% कोटा है इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इसकी तरफ देखा जाए। इसके बाद 16 अक्टूबर 2025 को 1183 लेटर निकलता है, ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैदराबाद रीजन की तरफ से निकलता है और इसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, चेयरमैन और DRC के हवाले से हैदराबाद डिवीजन तमाम और मेयर, म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद और चेयरमैन चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तमाम, द चेयरमैन टाउन ऑफिसर टाउन कमेटी तमाम, और इसी तरह चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तमाम, चेयरमैन चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमाम, द चेयरमैन सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल कमेटी तमाम को ये लेटर लिखा है अब्दुल्ला सिद्दीकी ने, और ये रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैदराबाद हैं, और इन्होंने कहा है कि फिलिंग अप वैकेंट पोस्ट अगेंस्ट द 5% रिजर्व कोटा फॉर डिफरेंट पर्सन इन द लोकल काउंसिल। तो पहली दफा कुछ ऐसा फर्रा निकला है जिसमें काउंसिल का नाम सुन के दिल बाग बाग हो जाता है, वरना यहाँ तो सूजी वाले जगह ही नहीं छोड़ रहे थे। बहरहाल उन्होंने लिखा है कि आपको ये लेटर लिख दिया गया है सो एंड सो फला फला, और 1 अक्टूबर का भी हवाला दिया है 2025 के लेटर का। ऑफिस रिसीव जो 14 अक्टूबर को हुई थी, सेक्शन ऑफिसर एडमिन लोकल गवर्नमेंट STP डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, उसके हवाले से उन्होंने हवाले जात दे के कहा है कि जो 5% जो कोटा है उसकी फिलिंग के लिए इक़दाम करें, और जो तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं जो यानी DRC करते हैं उनको तो खासकर मुखातिब किया गया है। लेकिन ये लेटर हमारे निकाल रहे हैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैदराबाद डिवीजन, यानी कि रीजनल डायरेक्टर जो हैं लोकल गवर्नमेंट हैदराबाद के उबैदुल्ला सिद्दीकी। जी हाँ, हालांकि ये भी मशहूर फिल्म है, नामी गिरामी है, लेकिन इन्होंने लेटर निकाला है काउंसिल के हवाले से। कराची में रीजनल डायरेक्टर कहाँ है रमज़ान पठान, क्या उनको ये लेटर नहीं मिला? क्या उन्होंने कहीं से हासिल नहीं किया कि वो भी काउंसिल वालों को भी देख लें कि भाई जो 5% कोटा है उस पर क्या अमल दरामद हो रहा है? 1 से लेकर 4 ग्रेड वालों का जो भी था, क्या इसके लिए भी कोई अहकाम जारी करने पड़ेंगे या लोकल गवर्नमेंट पहले करेगी फिर ये करेंगे? यानी जैसे इकोसिस्टम से आवाज़ आती है ना, इनका काम रीजनल डायरेक्टर का वही रह गया, पहले वहाँ से आवाज़ आती है, पीछे से बैकग्राउंड से ये आवाज़ आती है। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट लेटर लिखती है, फिर रीजनल डायरेक्टर ऊपर का और नीचे का बदल देती है, सारा मैटर बीच में वो डाल के फिर पार्सल कर देती है। लो भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया, माशाल्लाह। अजीज आरिफ, मेट्रो न्यूज़ कराची। सानेहाय कारसाज चेयरमैन मंगोपी टाउन नवाज बरोही पीपल्स पार्टी जिले गरबी के रहनुमा के हमराह कारसाज पहुंच गए, यादगार पर फूल चढ़ाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोही आज पहुंचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला गरबी के सदर ऑफिस 13 फार्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो और जिला किमाड़ी के हाजी करीम और वाइस चेयरमैन मंगोपी टाउन आरिफ राना, काउंसलर जावेद बरोही और दीगर के हमरा जब कारसाज पहुंचे, जहाँ सानिया 18 अक्टूबर के हवाले से आज यकीनी तौर पर शोक का समा था। सब यहाँ जमा थे, वहीं पर इनको आने वाले जो लोग थे उन्होंने इनका इस्तकबाल किया। और फिर यहाँ चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोही, जिला गरबी के सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप 13 फार्मेशन सेक्रेटरी अली अकबर काचेलो, हाजी करीम जिला किमाड़ी के और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन आरिफ राना, काउंसलर जावेद बरोही, सब ने मिलकर जाकर फिर यादगार शोहदा पर यकीनी तौर पर जो सानिया 18 अक्टूबर हुआ था
اس پر پھول رکھے، یعنی کہ انہوں نے جا کے احتراماً عقیدت کے طور پر وہاں گئے اور وہاں جا کے پھول رکھے اور یقینی طور پر وہاں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، جہاں پر چیئرمین جو تھے یقینی طور پر منگو پیر ٹاؤن، ان کا کہنا تھا کہ آج بڑا سانحہ تھا اور یقینی طور پر کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور اس موقع پر یقینی طور پر جبکہ اس موقع پہ حاجی کریم، جی ہاں، انہوں نے زبردست فلک شکاف نعرے بھی لگائے اور پھر لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ہم پہلے آپ کو تھوڑے سے نعرے سناتے ہیں، سنیے ذرا کہ انہوں نے کیا نعرے لگائے تھے۔ پچم کا منہ بھٹو کا، اب نکلا سورج بھٹو کا، پھر ہوا سویرا بھٹو کا، ہمیں درس ملا ہے بھٹو کا، بچے کے قاتل بھٹو کا، رائے کے قاتل بھٹو کا، ہم نام کریں گے بھٹو کا، ہم کام کریں گے بھٹو کا، ہر شخص دیوانہ بھٹو کا، اخلاق کا نعرہ بھٹو کا، طلباء کا نعرہ بھٹو کا، ہم ورکر کس کا بھٹو کا، ہم چالے کس کا بھٹو کا، اتوالے کس کا بھٹو کا، دیوانے کس کا بھٹو کا، پروانے کس کا بھٹو کا، یہ دائی کس کا بھٹو کا، یہ نیسی کس کا بھٹو کا، یہ پاسپورٹ کس کا بھٹو کا، یہ جرنل کس کا بھٹو کا، یہ سیول کس کا بھٹو کا، یہ ڈرامہ کس کا بھٹو کا، یہ جینا کس کا بھٹو کا، عباسی کس کا بھٹو کا، یہ شملہ معاہدہ بھٹو کا، یہ ممتا توپا بھٹو کا، آہین ہمارا بھٹو کا۔ یقینی طور پر یہ عجیب منظر تھا، اس لیے کہ جذباتی منظر تھا، کیونکہ سانحہ کارساز پر دل افسردہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران ہوں یا رہنما یا اس کے بعد جیالے ہوں، وہ یقینی طور پر 18 اکتوبر کو کارساز کا رخ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع غربی کے صدر عابد ستی، انفارمیشن سیکرٹری علی اکبر کاچھیلو، وائس چیئرمین منگو پیر ٹاؤن عارف رانا اور اس کے ساتھ ساتھ کونسلر جاوید بروہی اور دیگر جیالوں کے ساتھ کارساز پر موجود تھے اور اپنی موجودگی کو یقینی بنایا اور اس موقع پر فاتح خوانی بھی کی گئی۔ تاہم اس موقع پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے صحافیوں سے کیا کہا، سنیے۔ تو یقین نہیں آ رہا ہے 18 سال پہلے ہم جب یہاں موجود تھے، جب یہ واقعہ ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ کل کا دن تھا اور کل وہ واقعہ یہاں پہ ہوا، ہم بھی موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے قیادت سے لے کر ورکر جیالوں نے ہمیشہ شہادت کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے شہیدوں کو خاص طور پر ان کا جو ہے برسی مناتا ہے۔ جس طرح آج یہ ہم 18 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا سانحہ کارساز، جس میں پاکستان کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو ہے تاریخی استقبال محترمہ ہوئی، اس میں بڑا واقعہ ہو گیا الحمدللہ۔ آج جو ہے آج تک ہم وہ منا رہے ہیں۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی عہدیدار عابد ستی، علی اکبر کاچھیلو، وائس چیئرمین منگو پیر ٹاؤن عارف رانا، کونسلر منگو پیر ٹاؤن جاوید بروہی اور دیگر جیالوں نے اور خصوصاً ضلع کیماڑی سے تعلق رکھنے والے حاجی کریم نے آج یقینی طور پر سانحہ کارساز پر اپنی موجودگی کو یقینی بنایا۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ لانڈی ٹاؤن میں شجرکاری مہم جاری ہے، پارکوں کو بچانے کے لیے نجی شعبوں کو شامل کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں میونسپل کمشنر لانڈی ٹاؤن ابدات علی شاہ کی میٹرو ون نیوز سے گفتگو۔ آدھا برد ہے لانڈی ٹاؤن، جی ہاں، لانڈی ٹاؤن سے آواز جو آتی ہے وہ تو چیئرمین سے اگر بات کرو نا تو فوراً بولتا ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ، رو رہا ہوتا ہے اور صحیح رو رہا ہوتا ہے۔ ابھی بھی میں آیا ہوں لانڈی میں تو ایک جگہ کچرا پڑا تھا، ایک جگہ سالڈ ویسٹ کی گاڑی کھڑی تھی، لیکن پچھلا حصہ اس کا ایسے گرا ہوا تھا جیسے سفید شیر مرا تھا نا، مرنے سے پہلے اس کا پچھلا حصہ گرا ہوا تھا ویسا پڑا ہوا تھا۔ میں کہا چلو اٹھا لیں گے، لیکن پھر میں آیا، ہمارے میونسپل کمشنر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سید امداد علی شاہ، اور تعارف پتہ نہیں میں کیوں کراتا ہوں، سب جانتے ہیں ان کو سندھ کی سطح پر، تو پورے یہاں سے کراچی سے کشمور تک، ٹھل، نوشہر و فروز اور کیا سکر، بدین، ٹٹا، نوشہر، سانگڑ، مورو، سب جانتے ہیں جام شور والے، کیونکہ سندھ سیکریٹریٹ میں کافی عرصہ گزارا، ڈائریکٹر 1 2 3 رہے، تو ظاہر سب سے واسطہ پڑتا تھا۔ لیکن اب ایک چھوٹا سا ٹاؤن، جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ لانڈی ٹاؤن ملا ہوا ہے، آگے ہیں اور کام کر رہے ہیں، چیئرمین سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے کہ یہ بے ضرر آدمی ہے، کہتے ہیں کام کراؤ ایسی کی تیسی میں جائے، باقی جو کام اللہ نے منصب دیا اس کو پورا کر لوں۔ تو آج میں نے ان کو پکڑ لیا ہے، کوشش کروں گا کچھ اگلوانے کی، اگل لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں اگلتے تو میں کیا کروں۔ بھائی صاحب شجرکاری ہوئی تو آپ کی ہوگی بند، کر ہی نہیں رہو گے، آپ کر رہو کیا؟ اصل میں جیسے جاوید صاحب آپ کو بھی پتہ ہے ایک پرانے آدمی ہیں، ہم نے مل کے ایک پلان بنایا تھا کہ جہاں جہاں پانی کا
हमारे पास सोर्स है तो वो अवेल कर लें। आपको नर्सरी भी विज़िट कराई थी, तो माशाल्लाह जहाँ जहाँ भी हमने एक बड़ा हमने ग्रीन बेल्ट अभी मैंने खुद रिसेंटली अभी 1-2 दिन हुए फाइनल हुआ, उसी में कुछ पौधे लगवाए थे, वहाँ पानी था उसमें। असल में ये हमारी चेयरमैन साहब से भी एक सिटिंग हुई थी, तो मैंने कहा था कि पार्क को अगर हम वॉकिंग ट्रैक या ऐसी कोई एक्टिविटी में शामिल कर लें तो वो बेहतर है, क्योंकि पार्क मेन चीज़ है पानी। पानी के बगैर जो है मेरे ख्याल में वो नाइंसाफ़ी होगी। तो ये ऐसे ट्रैक पे इंशाल्लाह आपको विज़िट भी कराएंगे कि 5-6 हैं हमारे टारगेट में। तो ये उसका वॉकिंग ट्रैक और ये झूले वगैरह बच्चों की टफरी का, उसमें मैंने चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट की है कि कम्युनिटी इन्वॉल्व करें, कम्युनिटी को ओनरशिप दें, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जितनी भी है इज़ कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ये टीएमसी की प्रॉपर्टी तो अंडर कंट्रोल है, पर बेसिक जो है जब तक आप पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस लोकेलिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो अचीवमेंट मेरे हिसाब से इतनी अच्छी नहीं होगी। ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये वहां से बैठ के ना 1 2 3 खेलते थे कि टाउन के जो चेयरमैन या एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते थे उनको बताते थे कि भाई ये लॉजिक है, इसको इस्तेमाल कर लो तो आप बच जाओगे, आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये जो वहां बैठते थे ना, वो जो तजर्बा है ना, ये वो बोल रहा है। यार अल्लाह ताला की रहमत है लाडी टाउन पे कि आपकी अपनी नर्सरी है माशाल्लाह, पौधे भी उगते हैं, यानी पनेरी और क्या पौधे हो जो छोटे पौधे उगाते हैं, अफजाइश करते हैं प्राइमरी सतह से बीज डाल के, वो आपके पास मौजूद है। लेकिन पार्क आपके पास मतलब 100 के करीब है, लेकिन आपने जैसे कहा पानी नहीं है, तो या तो आप बोरिंग करें, और आपने जो आइडिया दिया है कि कम्युनिटी की दे दें कि वो खुद ही बोरिंग करेंगे, खुद ही इसको करेंगे, वरना आप 10 लाख पौधे उगा लो तो बेकार बेकार होगा वो तो। असल में जनाब आपको भी माशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम दिया है, आप भी हमारी एक असिस्ट की तरह हैं कि एक एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करते हो। आपकी कवरेज माशाल्लाह यूट्यूब पे बाकी चैनल्स पे आपको सुना जाता है। आप भी इस चीज़ के विटनेस हो गए कि अगर पौधा हमने फ़ोटो सेशन तो कर लिया, हमने पौधे भी कर लिए, हमारे पास नर्सरी भी है, अवेलेबिलिटी भी है, एक ज़िंदा चीज़ है, एक ज़िंदा चीज़ है। अगर हम उसको जानबूझ के अगर देने तो ये भी एक समझें कि वाजिब कत्ल है कि जानबूझ के कर रहे हैं। तो एक भले भले 200 रुपये का पौधा है, उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। 200 का पौधा नहीं, एक छोटे बच्चे को जिस तरह आप मारेंगे ना गला दबा के, इसी तरह हम कत्ल करें। ये मेरा तो ये थाट है। मैं भी आपको पता है कि ये प्लांट्स और ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी मैंने काम किया है शुरू से। तो अभी जो हालात हैं, क्योंकि लाठी में न बिजली पूरी तरह है, न आपको पास पानी की सहूलत है, गटर का पानी अगर यूज़ करें तो वो हमारी सैनिटेशन वाले तो इतना ताउन, क्योंकि वो भी समझेंगे रिटायरमेंट ज़्यादा हो गई है, अपॉइंटमेंट हुई नहीं, तो इसीलिए वो भी समझें कि हमारे लिए नाकाफ़ी है। तो हमने ये सजेशन की है जो मैंने आपको अभी अर्ज़ की कि इसको हम कम्युनिटी को करें और अंदर जो है वॉकिंग ट्रैक हो कि क्योंकि लाइट का यहाँ इशू है कि वो तफरी का एक हमारे यहाँ उसको ये मैसर आ जाए। सर नासिर हुसैन शाह आ गए, बहुत ज़बरदस्त आदमी हमारा यार, ये वज़ीर बल्दियात जो है मुस्कुराता रहता है, लेकिन उसमें एक चीज़ है, वो कहता है मैं सबको साथ लेके चलूँगा और अफसरान को भी नहीं छेड़ता, वो सबको साथ लेके चलता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप उसको जाके बताएं कि आप अपना मुकदमा नहीं लड़ें, आप तो ज़ाहिर है सेक्रेटरीट में 1 2 3 रहें तो उस पोस्ट पे रहें, उस हैसियत से लड़ें। यार 25 टाउनों में ये सूरत हाल है कि हमारा सैनिटेशन हो या पार्क डिपार्टमेंट हो या मंडी, ये ख़त्म होता जा रहा है, इसमें लोग रिटायर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं रख रहे। आपको इसका कोई फार्मूला कोई है, और क्यों लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम करने जा रहे हैं, तो कोई प्रपोजल उसमें ऐसा हो जाए कि हम बैंड हटे। असल में बताना मुझे मुनासिब नहीं समझ रहे मैं। असल में मैंने डीएमसी कोरेंगी भी चलाई है, तो वो जो अमल हुआ अपॉइंटमेंट का, वो अमल क्लर्क स्टाफ से हुआ। ये अगर हमारे कुलीग नीचे वाले अपॉइंट करते, माली करते, सैनिटेशन वर्कर करते, वो नहीं हुआ। अब देखें मामला मेरे सिर्फ लांडी का नहीं है, ये पूरी कराची का इशू है। तो इसमें 1 2 प्रॉब्लम्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि
वाटर कमीशन ने बैन लगाया था कि कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम एंगेज नहीं करेंगे, जो थे उनको भी रिवर्स किया गया था, आपको भी याद होगा। तो इस हिसाब से अब क्योंकि माजी में मैं जब डायरेक्टर वन था तो साईं नासिर हसन शाह हमारे मिनिस्टर थे, और इत्तफाकन हमारे एक ऑफिस का रिलेशन वैसे भी वो मेरे सखर के हैं, वो नाइस आदमी है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से भी पहले उनकी वर्किंग आपने माशाल्लाह देखी है। वो उसकी यही होती है कि जो भी मामलात हों मिल के हल करें। वो समझें कि मेरा पार्ट भी आपको ये 2 महीने का आपने देखा होगा कि खामखा वाली यहाँ वो नहीं हुई। देखिए मेरा अपना एक रोल है एज ए MC, चेयरमैन का अपना सियासी रोल है, वो सियासी एजेंडा है। हम ये है कि फ़िल्टर कर सकते हैं, हमारा काम है फ़िल्टर लगाना कि ऐसा ये जो है ये पैरामीटर से हट के है, इसको ऐसा नहीं ऐसा करें। ये चेयरमैन को बचाएंगे उनको। हाँ, ये समझें कि कल चेयरमैन के लिए भी अच्छा होगा, किसी अफसर के लिए भी अच्छा होगा। अगर ये एक मुफाहमत इस हिसाब से है तो मेरे ख्याल में सब MCs की होनी चाहिए। फ़िल्टर लगे, ज़रूर लगे। हम यहाँ गवर्नमेंट को जवाब हैं, गवर्नमेंट ने हमें बिठाया है, पर यह है कि उनको इतनी रुकावटें भी नहीं बना के दें कि ये जो उनका खुद का मोटिव है सियासी आदमी का, उनका एक प्लेटफॉर्म है, कल उन्होंने फिर दोबारा जाना है। हाँ, तो फिल्टर होना चाहिए, फिल्टर लगे। ये सही कह रहे हैं, ये इनका काम होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो फिल्टर कर। आखिर में एक सवाल बताओ यार, मेरा बड़ा पसंदीदा महकमा, दिल में बड़ी कलेजे में ठंडक पहुंचती है, उसको कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। आप मुतमईन हो अभी मौजूदा दौर में? असल में मैंने लास्ट भी आपसे जो बात हुई थी कि अगर माजी कंपेयर करेंगे तो बेहतर है, माजी कंपेयर करेंगे तो बेहतर है, बाकी अभी भी गुंजाइश है करने की। ये हमने जैसे लास्टली आपको बताया था कि जो अंदर के यूसीज की वो एक कैंपेन चलाई थी, हम उसमें हम भी शामिल थे, सॉलिड वेस्ट की भी मेहरबानी वो भी शामिल हो गए, तो काफ़ी बेहतरी हुई है, पर परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कुछ बेहतरी की गुंजाइश है। बेहतरी की रोड बेहतर हो गए हैं, हमारे मेन रोड पहले से काफ़ी बेहतर हो गए। आपका तो आना जाना रहा है रोड, ये खामखा तनकीद वाली कहानी भी अच्छी नहीं होती। जो अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कंपेरेटिवली माजी से हम बेहतर हैं। चेयरमैन तो सही आदमी नहीं है आपका यार, 23 करोड़ लेके बैठा है, बोल रहा हूँ आधे आधे कर लो, करता ही नहीं है यार। मैंने कहा कोई नहीं पकड़ेगा, फिर भी नहीं कर रहा। असल में हमारे 23 करोड़ जो है ना वो हैं रोड कटिंग के। रोड कटिंग का हमने प्रोक्योरमेंट प्लान हमने बना लिया है, वो चेयरमैन साहब ने वो सारी चीज़ें कर ली हैं। तो इंशाल्लाह क्योंकि वो 30 तारीख थी इस महीने की ना, जो हमें स्विगेस वालों को डायरेक्शन थी कमिश्नर की तरफ से भी, जो हमारी कमिट हुई थी कि भाई 30 तारीख तक ये हमें हैंडओवर करेंगे साइट। उसके बाद हम प्रोक्योरमेंट के हिसाब से हम रेडी हैं। तो वो इंशाल्लाह हमारी तकरीबन 2 यूसियाँ और 2 रोड हैं। एक रोड पे तो हमने काम शुरू करा दिया है 15,000 पे, वो जो रोड कटिंग हुई थी वो उसका प्राइमरी काम हो गया। तो आगे इंशाल्लाह कमिंग वीक में कारपेट पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। ये थे इमदाद अली शाह, सैयद इमदाद अली शाह, सीनियर ऑफिसर है। तारुफ बिला वजह मैं कराता हूँ, पहचान जाते हो गए, लेकिन आज भी इनसे बात की तो इन्होंने अच्छी अच्छी बातें की हैं। और एक जो अफसर जो होता है ना, जो गाइड कर सकता है, और ये उन्होंने सिर्फ लांडी टाउन के लिए नहीं कहा है, ये 25 टाउन के लिए कहा है। पार्कों को आप कम्युनिटी की सतह पे दें, अपने पार्कों को बचाएं, और एक पौधा चाहे वो 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, वो आपके बच्चों की तरह है। आप कत्ल आप वैसे ही करोगे, तो लिहाजा पौधे ज़रूर उगाओ, लेकिन देखो पानी है कि नहीं है, वरना कम्युनिटी को लेके आओ, घेर के लाओ, उनसे काम कराओ, अपना भी नाम रोशन करो। आधा बस। बुलेटिन में मजीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेट्रो वन न्यूज की आवाज पर चेयरमैन जिनाहा टाउन ने लसबीला में जारी सड़क की तामीर के कामों को तेज करने की हिदायत कर दी। गली में प्योर ब्लॉक्स की तनसीब के लिए ब्लॉक्स भी पहुंचा दिए गए। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में।
जिला सिग्नल के करीब स्कूल इंतजामिया ने टाउन चेयरमैन से गली में पेवर ब्लॉक्स लगाने का मुतालबा किया तो चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी ने फौरी पेवर ब्लॉक्स पहुंचाकर काम शुरू करवा इंतजामिया और इलाका मकीनों ने जिन्ना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गली में बारिशों के बाद पानी जमा होने का मामला भी हल हो जाएगा। जिन्ना टाउन इंतजामिया बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। हाँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पहले मेट्रो वन चैनल का, जिसके तवज्जुह से जो है वो पेवर ब्लॉक तो आ चुके हैं। पहले यहाँ रोड डाला जा रहा था, हमने यही कहा कि भाई अगर ये पेवर ब्लॉक लग जाए तो ये मजबूत भी हो जाता है और चलने में भी दुश्वारी नहीं होती और देर पा भी होता है। तो टाउन चेयरमैन का भी शुक्रिया अदा करते हैं रिजवान भाई का कि जिन्होंने जो है वो हमारे इलाके में जो है वो ये रोड बिछाने का काम किया है। बड़ा अच्छी साइन है कि ये इस तरह से सारी जगह पर अगर पेवर ब्लॉक लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पहले तो हालत माशाल्लाह से बहुत बुरी थी, आना जाना मतलब कि ऐसा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। और बाकी ये कि अगर ये सिस्टम बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं तो कुछ बेहतरी नज़र आएगी, लेकिन अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए तो ये है कि अल्लाह करे कि ये रहे सही, क्योंकि ये सेवरेज का और ये मसला तो इस गली का रहा है। बारिश का पानी वगैरह ऐसा खड़ा हो जाता है, वो जाता नहीं था। अब अल्लाह करे कि ये मामला हमारा निमट जाए। मसाइल का हल अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अगर करना चाहें तो फौरी कर सकते हैं। इसकी जिंदा मिसाल जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो वन न्यूज, कराची। शाह फैसल टाउन महकमा फाइनेंस ने महकमा बागात को शिकस्त दे दी, ट्रॉफी अपने नाम कर ली। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की शिरकत, देखिए ये रिपोर्ट। शाह फैसल टाउन, जी हाँ, जहाँ अवामी खिदमत के काम तेजी से जारी है, वहीं पर एक टूर्नामेंट का भी इनेकाद किया गया। तमाम महकमा जाती जो अफसरान थे, मुलाजमीन थे, उनके दरमियान एक मुकाबले का एहतमाम किया गया एक खूबसूरत जगह पे। जी हाँ, ये कहीं कश्मीर वश्मीर में नहीं, गिलगित में नहीं, शाह फैसल टाउन में ही एक चीज़ बनी हुई है। आप देख रहे हो, इसके अंदर 2 ग्राउंड है। खैर बहरहाल इसके अंदर उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट का इंतजाम किया, जिसमें तमाम महकमा जाती अफसरान की टीमें थीं। इसमें जो है मैच बड़े दिलचस्प हुए और बड़े ख़तरनाक भी हुए। यानी कि चेयरमैन 11 का मुकाबला पड़ गया महकमा बागात की टीम से, और महकमा बागात की टीम ने रह नाम अल्लाह का ऐसा धोया है कि तबीयत खुश कर दी। जी हाँ, और तमाम जगह से हिश हिश होए की आवाज़ें आ रही थी। और महकमा बागात ने चेयरमैन 11 को चारों शाने चित करके ऐसा सुलाया है कि मेरा ख्याल है 2-3 साल तो नहीं उठेंगे, और फतह कामयाबी हासिल कर ली। वाइस चेयरमैन तारिक महमूद भंगज ने हमारे कान में आहिस्ता से बोला, अजीज आलिफ, महकमा बागात ने चेयरमैन के ने जो इनके साथ किया था उसके गिन गिन के बदले ले लिए, और कह के वो सुर हो गए वाइस चेयरमैन तारिक महमूद भंगज। हमने बोला कोई बात नहीं, निकल लो, ऐसा ना तुम भी फंस जाओ। बहरहाल डिप्टी कमिश्नर जिला कोहरंगी, जी हाँ, मसूद भुट्टो, असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल टाउन नेमतुल्लाह चाचड़ भी हौसला अफजाई करने पहुंचे थे, क्योंकि तो शाह फैसल टाउन के महकमा जाती अफसरान का मैच था। बहरहाल मैच जारी रहा, और उसके बाद महकमा बागात की टीम ने चेयरमैन 11 यार, तुम लोग और खटक कई बैंड बजाने के चक्कर में रहते हो, उनकी टीम को जहां खतरनाक शिकस्त दी और सुला दिया, उसके बाद फिर मैच पड़ गया महकमा बागात का फाइनेंस डिपार्टमेंट साहब। और फाइनेंस डिपार्टमेंट तो आपको पता है, वहाँ करण अर्जुन भी बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये तो टांगों में से निकल जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने जो मैच खेला, रहे नाम अल्लाह का, ऐसा इमाम दस्ते में रख के महकमा बागात को कूटा कि उनकी चीखें निकल गई, भगा भगा के। हमने आपको बताया ना, करण अर्जुन ये बड़ी खतरनाक फिल्म है, और बजट वाले और फाइनेंस वाले वैसे ही खतरनाक होते हैं। लिहाजा हो सकता है कि महकमा बागात वाले सोच रहे होंगे भैया इनसे पंगा नहीं लो, ये तो फिर आगे जाके कल बुखार उतार देंगे। लिहाजा बहरहाल इन्होंने महकमा फाइनेंस की टीम ने महकमा बागात की टीम की ऐसी सर्विस ट्यूनिंग की रहना मल्ला का, और फिर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और आप ये देखें ट्रॉफी लेकर आ रहे हैं, माशाल्लाह भाई ले आए ट्रॉफी खींच के। तो शाह फैसल टाउन में जहां लोगों को बलदियाती सहूलतों की फराहमी जारी है, वहीं महकमा जाती अफसरान के दरमियान एक खुशगवार माहौल में, एक अच्छे माहौल में यकीनी तौर पर इस तरह की यानी गैर निसाबी सरगर्मी कह लो या गैर सरकारी सरगर्मियाँ कह लो, वो कर लेते हैं ताकि थोड़े से ये वार्म अप हो जाएं। हालांकि इनको वार्म अप करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह महकमा फाइनेंस ने महकमा बागात की सर्विस ट्यूनिंग की है, रहे नाम अल्लाह का, ये तो आइंदा क्रिकेट खेलेंगे ही नहीं, फुटबॉल के भी काबिल नहीं छोड़ा महकमा फाइनेंस ने। लेकिन चेयरमैन 11 का क्या होगा सोनिया। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची।
और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि इब्राहिम हैदरी टाउन के अफसरान ताहाल तनख्वाहों से महरूम, फाका कशी का शिकार हो गए। लोकल गवर्नमेंट की पुरस्रार खामोशी, देखिए ये रिपोर्ट। सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन जहाँ काहे करते रहते हैं, परेशानी का शिकार हैं, वहीं पर आज तकरीबन आप समझ लें कि 18 अक्टूबर इतवार है और 19 अक्टूबर हो जाएगी, लेकिन इब्राहिम हैदरी टाउन के अफसरान और मुलाजमीन आज तक तनख्वाहों से महरूम हैं। जी हाँ, अदालती हुक्म के मुताबिक 10 तारीख से पहले तनख्वाह देनी है। ओजरटी शेयर भी पहले आ गए थे और यकीनी तौर पर ये तनख्वाह हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इब्राहिम हैदरी टाउन और गडाफ टाउन के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा था। वो मिल्चिंग क्या होता है उसके ऊपर, और लोकल गवर्नमेंट कमीशन में भी इजलास हुआ था, लेकिन फिर अदालत चले गए थे। अदालत ने फैसला दिया था और फैसला गडाफ टाउन के हक में जहां आ तो गया था, लेकिन अदालत ने फिर चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो और म्युनिसिपल कमिश्नर नवाज खुश को सस्पेंड कर दिया था, यानी मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए थे, क्योंकि तौहीन अदालत का केस था। बहरहाल उनके मुअत्तली होने के बाद यकीनी तौर पर कानून जो अदालत का फैसला था उस पर चेयरमैन और म्युनिसिपल कमिश्नर ने मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया और बिल्कुल किनारे हो गए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अब 18 तारीख इतवार है और 19 को पीर है और पीर को भी तनख्वाह होने के कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट साई कर रही है और लोकल गवर्नमेंट को इसकी कोई परवाह नहीं होती कि मुलाजमीन मर रहे हो या जी रहे हो या काहे कर रहे हो, कब्र में जा रहे हो, उनको कोई फिक्र नहीं होती। वो ठंडी मशीन में बैठते हैं, दरवाजे खिड़कियां बंद होती है, बाहर का मंजर इनको नहीं आता, जो शोर शराबा करते हैं वो आवाज़ तक इनके कानों में नहीं पहुंचती, इसलिए कि ये 18, 19, 20, 21 ग्रेड के अफसरान होते हैं। ये अवामी वो नहीं होते, पब्लिक सर्वेंट नहीं होते, हालांकि इनको कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी नौकर, लेकिन ये सरकारी नौकर नहीं है, ये बादशाह सलामत है। और यही वजह है कि वो इनको नहीं एहसास। वरना चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो, म्युनिसिपल कमिश्नर नवाज खुश अगर मुअत्तल हो गए हैं तो यकीनी तौर पर इनकी तनख्वाहों का अमल नहीं रुकना चाहिए था। इसके लिए वजारत बल्दियात को फौरी तौर पर इस चीज़ को देखते हुए कि उनकी तनख्वाह होगी कि नहीं होगी, हालांकि इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लेटर निकालते हैं और हेयरिंग के निकालते हैं, जल्दी से आ जाओ रसमलाई अफशी हलवा। बहरहाल तो इनको चाहिए था कि वाइस चेयरमैन को इख्तियारात देते, चेयरमैन के आर्जी तौर पर, और अकाउंट ऑफिसर को चार्ज देते फिलहाल साइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहों के बिल के ऊपर, और ये माजी में होते रहे हैं। कोई ऐसा नया तजर्बा नहीं है या कोई ऐसी चीज़ मुतारिफ करा रहे हैं जो बड़ी ज़बरदस्त खबर हो, ये कोई खबर नहीं है, ये मामूल के मुताबिक होता है। इसके तहत अगर आप ये और पावर दे देते आर्जी तौर पर, जी हाँ, और रीजनल डायरेक्टर के थ्रू लेटर भी निकल जाता, तो उसके साथ अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाह 12-13 तारीख को 14 तारीख को हो जाती, लेकिन अब 18 हो गई, इतवार है, 19 और 20-22 पता नहीं कब होगी। इसलिए कि अदालती फैसले के तहत जहाँ चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो मुअत्तल हुए हैं और म्युनिसिपल कमिश्नर नवाज खुश, उससे तो यकीनी तौर पर इब्राहिम हैदरी में जो तरक्की का सफ़र था वो भी रुक गया है। जी हाँ, चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो जिस तरह अवामी खिदमत के काम कर रहे थे और दहलीज में बल्दियाती सहूलतें फराहम कर रहे थे, वो चीज़ भी रुक गई है, जो कि अफसोसनाक अमर है। इसलिए कि ये अमल जारी रहना चाहिए, इससे बराह रास्त इब्राहिम हैदरी टाउन के बेचारे गोटों देहातों के लोग वो फंस रहे हैं। इधर तो मुलाजमीन की एक छोटी तादाद है, लेकिन वो पूरी आबादी है, वो मुतासर हो रही है। लेकिन हम फिर कहेंगे, लोकल गवर्नमेंट अगर चाहे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ग्रेड 21 जो पैंट शर्ट भी पहनते हैं, टाई भी लगाते हैं और कभी कभी कुर्ता शलवार भी पहनते हैं, अगर वो ग्रेड 21 के हैं और मुलाजमीन की तरफ देख लें जो उनके फ़राइज़ में शामिल है, तो वो 2 पावर यानी लेटर दे सकते हैं, वाइस चेयरमैन को आर्जी तौर पर और उसके साथ साथ अकाउंट ऑफिसर को, कि वो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहों के बिल साइन करें और फौरी तौर पर अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाह हो, ताकि वो फाका कशी से बच सकें। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। MA जिना रोड से गार्डन हेडक्वार्टर जाने वाली शाहराह मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। शहरी अजियतनाक सफर के सबब KMC इंतजामिया को कसूरवार ठहरा रहे हैं। तफसीलात जुनेद जावेद की इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शहर भर की तबाहाल सड़कों को मरम्मत करने और अस्तरकारी करने का ऐलान किया गया था, मगर आज भी कई ऐसी सड़कें हैं जो हुकूमती तवज्जो चाहती हैं। ये शाहराह MA जिना रोड को गार्डन हेडक्वार्टर और चिड़ियाघर तक जाती हैं, जहां सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं। कहां से कहां तक?
یہ مین امیجنا روڈ سے لے کے یہ کراچی زو چڑیا گھر ہے یہاں تک یہ بالکل ٹوٹا پھوٹا روڈ ہے، اور بیچ میں جو یہ لائن ڈالی ہے اس میں یہ گیس والی، اس کے بیچ میں دوسرا گٹر کا پانی KMC کو چاہیے کم سے کم یہ بنائے. مٹی دھول یہاں سے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، جو رہائشی ہیں ان کے لیے بھی بیماریاں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جی شارع تو روڈ وغیرہ تو آپ کو خود کو نظر آ رہا ہے، تو اتنا بندہ آسانی سے تو سفر نہیں کر سکتا. سر یہ گارڈن ہیڈ کوارٹر والی روڈ ہے، اور دوسرا یہ روڈ کے اوپر اتنے مسئلے مسائل، اسکول کے بچے وغیرہ جاتے ہیں آئے دن، کبھی رکشے کلٹی ہو جاتے ہیں، کبھی پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے. لوگ اس پریشانی اور اس اذیت میں مبتلا ہیں کہ میں آپ کو شاید حکام بالا سے شکایت کر کر کے تھک گئے. واٹر بورڈ والے آتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن یہ ایشو رہتا ہی ہے. ملک بھر میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کو لوگ لاوارث شہر کراچی کا لقب دے رہے ہیں، کیونکہ یہاں کا انفراسٹرکچر مکمل تباہی کا شکار ہو چکا ہے. کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ جنید جاوید، میٹرو ون نیوز، کراچی. نیو کراچی ٹاؤن میں نئے میونسپل کمشنر منور ملہ نے چارج سنبھالنے کے بعد تعارفی اجلاس منعقد کیا، جس میں MQM پاکستان کے انچارج لیبر ڈویژن بابر خان اور کمیٹی ممبران نے بھی شرکت کی. بابر خان نے منور ملہ کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا اور ملازمین کے جائز حقوق کے تحفظ کے عزم کا اظہار کیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. نیو کراچی ٹاؤن میں منور ملہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے میونسپل کمشنر کی حیثیت سے چارج سنبھال لیا ہے، اور لوگوں نے مبارکباد دینے کا سلسلہ جہاں جاری رکھا تھا تو انہوں نے افسران سے تعارفی اجلاس بھی کیا تھا. تاہم اجلاس اب جو ہے انچارج لیبر ڈویژن MQM پاکستان نیو کراچی ٹاؤن بابر خان اور کمیٹی کے دیگر ممبران بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، یعنی نئے آنے والے میونسپل کمشنر منور حسین ملہ کے پاس ملاقات کرنے، اور ان کو پہلے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے. انچارج لیبر ڈویژن بابر خان نے یقینی طور پر ان کو پھولوں کا گلدستہ دیا. باقی جو سائیڈ میں کھڑے تھے وہ بھی مسکرا رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہی بابر خان ہے جو دما دم مسقلندر کریں گے، اور یہ ایسی قوالی کرتے ہیں کہ پیچھے ہم نوا بھی جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں. یہی اکیلے کافی ہیں قوالی کرنے کے لیے. لیکن باہر آج انہوں نے ماحول اچھا رکھا ہوگا یقیناً، اسی لیے انہوں نے ان کو پھولوں کا گلدستہ دیا. پھر ان سے بیٹھ کے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا اور بتایا کہ متعلق گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ افسران و ملازمین کے جائز حقوق اور اس کے مفادات کا ہر ممکن تحفظ کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کوششیں جاری رہتی ہیں. اور نیو کراچی میں یقینی طور یعنی نیو کراچی ٹاؤن میں ملازمین کے کچھ مسائل ہیں، ابھی کچھ باقی ہیں. تو یقینی طور پر منور ملہ کی آمد جو ہو گئی ہے تو اس سے ہمیں تو بڑی امید وابستہ ہوئی ہے کہ اب شاید آپ بھی مل کر چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف، وائس چیئرمین نوجوان شعیب بن ظہیر کے ہمراہ پینٹ شرٹ پہن کے یقینی طور پر آپ ان کے ساتھ مل کر ملازمین کے جائز حقوق اور اس کے مفادات کا تحفظ کریں گے. اور کچھ ایریئر وغیرہ ہیں، کچھ دیگر مسائل ہیں، تو اس پر ہم گفتگو شدید بعد میں کر لیں گے، کیونکہ ابھی تو ہم آئے ہیں ہیلو کرنے اور آپ کو پھول پیش کرنے. بابر بھائی تم بھی سیانے ہو، پھول دینے کے بعد مدعا بھی بیان کر دیا اور بولا اگلی دفعہ پھر ملیں گے. ماشاء اللہ بھائی، یہ ہے فلم انچارج لیبر ڈویژن MQM پاکستان نیو کراچی ٹاؤن بابر خان. کام بھی اتار دیا، پھول بھی دے دیا، اور اس کے بعد اگلی ملاقات کا بھی سیشن کا ٹائم لے لیا. ماشاءاللہ بھائی. عزیز عارف، میٹرو ون نیوز، کراچی. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا، اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.